guys, this is Prachita Banik and welcome to my channel. So today in this video we are going to discuss the second part of supplementary class 8 English chapter 2, that is namely children at work. So we have completed the first part and you can check it out in the description box. So let's begin our video. So Value follow his friend through the crowded street to big buildings. So who is Value's friend? Obviously the girl who met in the railway station. Behind the building there was a big garbage bin, so about which we will read in the chapter further. Then Value wonders why they are there at all. We will read all this in the chapter, so let's read it. Okay, so he caught up with the girl as he was leaving the station. So उसने क्या गर्ल को कैच कर लिया. कैच मतलब पकड़ना नहीं, उसके साथ वो चला गया जो स्टेशन को छोड़ रही थी. When they got to the road, जब वो लोग रोड में आए, Value found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. So जब Value रोड में आया तो he found that the vehicles were unstoppable. They were not stopping for anyone to cross the road, right? So Value ने क्या फाउंड किया कि जो व्हीकल्स है वो लगातार चली जा रही है, किसी के लिए स्टॉप ही नहीं हो रही है कि रोड क्रॉस करे. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स. तो उसके चेहरे पर चारों ओर से धूल मिट्टी ही आ रही थी, मेकिंग हिज हेड स्पिन. तो उसका एकदम मतलब सिर चकरा रहा था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रू. तो उन्हें बहुत देर तक रुकना पड़ा उसके पहले कि कोई गैप मिल जाए उसको रोड क्रॉस करने के लिए. Clear? Value kept hesitating and the girl finally dragged him to the another side. तो ये जो वैल्यू है वो हेजिटेट कर रहा था, हिचकिचा रहा था इस रोड को क्रॉस करने के लिए. देन व्हाट हैपेंड, द गर्ल जस्ट ड्रैग्ड हिम टू द अनदर साइड बिकॉज शी न्यू दैट ही इज मीन्स not very quick. He is a village boy, right? Okay, then what do you think you are doing? तो गर्ल ने पूछा वैल्यू को कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ये क्या कर रहे हो. तो ग्रेजिंग का उसने पूछा कि तुम क्या गाय को ग्रेज कर रहे हो. If you stand around in the middle of the road like this, you will be chutney. So she said that if Value kept standing in the middle of the road, what happened to him? He will be chutney means he will be just road उसको just एकदम फेंक के चली जाएगी, right? Okay. Then Value's heart were still beating hard. तो वो उसका जो हार्ट था धक 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 जोर से कर रहा था. तब भी he looked at the back at the central station and the traffic speeding by. तो वो देख रहा था वो सेंट्रल जो स्टेशन था उसको और जो ट्रैफिक जो है जो स्पीड से जा रहा है उसको भी. How had they managed to come through that? They walked along the side under under a huge signboard. तो वो लोग साइन बोर्ड के शेडो के नीचे से वो लोग जा रहे थे. Clear? Value looked up at the pictures, banyans, car tires, pens, a woman holding a box. The writing was all in English, so he didn't know what it meant. देखिए Value when he saw the hoardings, ठीक है, then the pictures that were on them he could understand. ठीक है, कोई भी पिक्चर देख के तो समझ में आ ही जाता है, किसी को भी आ जाएगा. But he couldn't understand what was written on the hoarding. Why? Because that's all were in English language and he didn't know the English. ठीक है. The girl turned onto a wide bridge and walked up. तो वो एक ब्रिज के ऊपर चढ़ी और उसमें वो वॉक करना उसने शुरू किया. Value stopped and peeped over the railings. तो Value ने क्या किया, उसके जो रेलिंग्स थे उसमें वो देख रहा था, पीप कर रहा था. Clear? Under him the roads ran into cities. तो उसके जो नीचे रोड जा रही थी सिटीज़ में, मतलब कि व्हीकल्स चल रही थी नीचे. In the distance he could see huge building and towers and more roads. तो थोड़ी ही दूर में
बहुत ह्यूज बिल्डिंग्स थे, टावर्स थे, रोड्स थे. See that building with the wall around it. If you are not careful, you will soon be counting bar there. ठीक है. तो जब वैल्यू पीप कर रहा था उन रेलिंग्स से, तो उस गर्ल ने बोला देखो वो बड़ी बिल्डिंग, वॉल विथ वॉल, मतलब वॉल से चारों ओर वॉल थे उस बिल्डिंग के, और उसने गर्ल ने उसको दिखाया कि वो देखो वो बिल्डिंग. ठीक है. अगर तुम इधर केयरफुल नहीं रहे तो यू विल बी सून बी काउंटिंग बार्स देयर, मतलब यू विल बी इनसाइड दैट. द गर्ल ग्राइंड एंड पॉइंटेड एट द ह्यूज बिल्डिंग. तो उसने क्या किया, उसने पॉइंट किया उस बड़े से बिल्डिंग पर. वैल्यू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल. तो वैल्यू ने क्या किया, वो उसने पढ़ लिया जो तमिल साइन वहाँ पर लिखा था, और तमिल में क्या लिखा था, सेंट्रल जेल. वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग. तो वैल्यू बोल रहा है उस गर्ल को कि क्यों मैं जेल में जाऊँगा, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं. यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट डू नॉट गेट कॉट. तो वो गर्ल बोलती है कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जस्ट पकड़े मत जाओ. ठीक है. दैट्स ऑल, यही सब कुछ है. व्हाट डज शी मीन, वो क्या मीन कर रही है. वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू सोच रहा था. मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज विद द सैक ऑन हर शोल्डर. ठीक है. तो वो क्या मीन कर रही है, वैल्यू ये सोचने लगा. तभी उसने देखा कि वो गर्ल नीचे जा रही थी, ब्रिज से उतर रही थी, अब एक सैक अपने शोल्डर पर लेकर. व्हाट वाज इन इट. तो वो पूछता है कि वो क्या है, ये सैक में क्या है. ही हैड सीन हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू इट एट द स्टेशन. तो उसने देखा था कि वो जो गर्ल है वो सैक्स में क्या कर रही है, पुट कर रही है प्लास्टिक कप्स को. ठीक है. मतलब शी वॉज कलेक्टिंग दीज प्लास्टिक्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द स्टेशन. क्लियर दैट वी हैव स्टडीड. देन व्हाट आर यू कैरिंग इन द बैग्स. तुम क्या कैरी कर रही हो. वो थिंग्स, बॉटल्स, पेपर्स. तो उसने क्या बोला, शी रिप्लाइड दैट दीज वर द ऑब्वियसली थिंग्स सच एज बॉटल, पेपर, एक्सेट्रा. Value wondered what she was doing with them, but he felt shy to ask any more questions. तो वैल्यू सोच रहा था कि वह इन सब चीज़ों से वो क्या करेगी, लेकिन वो शर्मा रहा था कुछ और क्वेश्चंस पूछने, मतलब ये सब, मतलब और ज़्यादा क्वेश्चन पूछने में वो शर्मा रहा था, वो और उससे बात नहीं करना चाहता था. ठीक है. Okay. Then it was still morning, but the sun blasted down on the tars and Value's bare feet burned. तो मॉर्निंग ही था, लेकिन ये जो सन है वो इतना ज़्यादा ब्लास्ट हो रहा था ना, मतलब इतनी गर्मी थी ऑन द टार्स, मतलब रोड में जो एकदम सरफेस में जो डाला जाता है वो टार्स इतनी गर्म हो चुकी थी कि वैल्यू का जो फीट था वो बर्न हो गया था. खाली फीट, बेयर फीट, मतलब खाली फीट बर्न हो चुका था क्योंकि उसके पास स्लीपर्स नहीं थे. ठीक है. ओके. इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन द मड रोड. सी, वैल्यू डोंट यूज टू वेयर द स्लीपर्स. वाई? बिकॉज ही यूज टू लिव इन द विलेज, एंड इन द विलेज देयर वॉज अ मड on which he had to work, and the mud are always very cool. Clear? Okay. He was soaked with the soil. वो एकदम पसीना पसीना हो चुका था. He tried hard to walk in the shade and keep up with the girl at the same time. उसने क्या किया, वह शेड में चलने की भी कोशिश कर रहा था और गर्ल के साथ साथ चलने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो वो गर्ल उसे छोड़कर चली जाएगी. क्लियर. शी वॉक्ड रियली फास्ट. वो लड़की बहुत ही तेज़ दौड़ती थी. हाउ फार अवे वॉज द फूड. तो वैल्यू पूछता है कि और कितना दूर है हमारा खाना. Okay, so after almost an hour of walking, they stopped in the front of a big building. ठीक है. कुछ घंटे चलने के बाद, ठीक है, कुछ घंटे चलने के बाद वह स्टॉप हुए एक बड़ी सी बिल्डिंग में, नेम्ड राजा राजेश्वरा प्रसन्न कल्याण मंडपम. क्लियर. व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिल्डिंग.
श्री राजा राजेश्वरी प्रसन्न कल्याण मंडपम में वो खड़े थे। मतलब वो एक बिल्डिंग थी, एक मैरिज हॉल था जिसके सामने वेल्यू और वो गर्ल खड़ी थी। देन रीड वेल्यू स्लोली, तो वेल्यू ने वो धीरे धीरे पढ़ा। द साइन विद द लेटर्स मेड ऑफ फ्लावर सेड्स, ठीक है, उसमें फ्लावर्स से लिखा गया था ग्रूम, जेवी, विनायगन, ब्राइड, रानी। तो उधर एक ऑब्वियसली एक शादी हो रही थी जहाँ पर ग्रूम का नाम भी लिखा था फ्लावर से, ब्राइड का नाम भी लिखा था फ्लावर से। क्लियर? ओके। देन वेल्यू स्टेयर्ड एट द बिग कार पार्क्ड आउटसाइड। वेल्यू ने क्या नोटिस किया कि देयर वर द बिग कार्स दैट वर पार्क्ड आउटसाइड, ठीक है। One of the car had a flower garland and roses stamped on it. तो एक one of them means एक गाड़ी में flower garland and roses से taped था। Clear? Okay. Then the girl looked around, pulled one off quickly and stuck it in her hair. तो उस गर्ल ने क्या किया, उस गर्ल ने जल्दी से उस गाड़ी से एक फ्लावर लिया, देन उसको अपने सिर पर स्टक किया, मतलब अपने सिर पर लगा लिया। कम ऑन शी सेड, तो गर्ल ने बोला जल्दी आओ। आर वी गोइंग टू ईट हेयर सेड वेल्यू। वेल्यू बोल रहा था कि क्या हम इधर खाने वाले हैं। लुक एट द ह्यूज हॉल एंड द पीपल इनसाइड। लुकिंग मतलब वेल्यू इतने बड़े हॉल में पीपल को देखकर बोल रहा था कि क्या हम इधर खाने वाले हैं। होप्स सेड द गर्ल शेकिंग हर थम अंडर हिज नोज। तो वो गर्ल बोलती है कि काश खा पाते, काश, सिर्फ काश बोला। शी लेड हिम बिहाइंड द हॉल, तो फिर वो उसको हॉल के पीछे ले गई। देयर वॉज अ बिग गार्बेज बिन ओवरफ्लोइंग विथ रबिश। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा गार्बेज बिन था जो कि ओवरफ्लो कर रहा था गार्बेजेस से। दैन 2 गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल। 2 गोट्स वहाँ पर खड़े थे। फाइटिंग फॉर बनाना लीफ, वो जो दोनों गोट थे वो बनाना लीफ के लिए फाइट कर रहे थे। क्लियर? अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बज्ड अराउंड देयर लेग। तो जो मच्छी थे वो अब वेल्यू और गर्ल के पैर में एकदम बजिंग कर रहे थे, ठीक है। देयर वॉज अ रॉटन स्मेल इन द एयर, मतलब एकदम पचा पचा वाला खाने का स्मेल था पूरे एयर में। द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वीजी बनाना एंड हेल्ड इट टू वेल्यू। तो गर्ल ने क्या किया, एक बहुत ही एकदम क्वीजी वाला बनाना लिया और वेल्यू को दे दिया। सी, मैंने आपको बोला था ना कि उसने अपने हेयर पर स्टक कर लिया था फ्लावर, ये देखिए, ठीक है। ओके, सो हेयर योर फूड। तो गर्ल ने वेल्यू को बोला ये लो तुम्हारा खाना। वेल्यू वॉज शॉक्ड। आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स। तो वो बोल रहा था कि क्या हम उनका बचा कुचा खाना खाएंगे। छी, व्हाट डू यू थिंक आई एम, अ डॉग। तो वो लड़की बोल रही थी कि छी, तुम क्या समझते हो मैं एक डॉग हूँ। आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं सिर्फ अनटच्ड फूड ही खाती हूँ। हेयर सम मोर कैचेस, कैच मतलब उसने बोली हे इधर देखो और बहुत सारे हैं, ये लो कैच, ऐसा वाला, ठीक है। शी थ्रू हिम अ वड़ा, तो उसने उसको एक वड़ा दिया। वेल्यू लुक्ड एट इट विद दिस टेस्ट, मतलब उसने उसे एकदम छी कैसा खाना, ऐसी भावना, ऐसी तरह से इसको देखा। क्लियर? ओके। कम ऑन हीरो ईट इट, यू थिंक आई लाइक इट। तो उसने बोला, उस लड़की ने बोला कम ऑन हीरो, मतलब उसको ऐसे ही बोला कि खा लो खा लो, तुम क्या समझते हो कि मुझे ये पसंद है। आई टोल्ड यू आई विल फाइंड यू समथिंग टू ईट। तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम्हें कुछ खाने के लिए दूंगी। डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाई फूड फॉर यू।
तो उसने बोला ये मत सोचना तुम कि मेरे पास पैसे हैं तुम्हें खाना खरीद के देने के लिए। यू डिड बेटर ईट व्हाट यू गेट अंटिल यू हैव योर ओन मनी। तुम यही खाओ जब तक तुम्हें तुम्हारे खुद के पैसे नहीं मिलते। Value hesitated, but his stomach squeezed him again. Value hesitate, हिचकिचा रहा था, लेकिन उसका जो स्टमक था वो बहुत ही स्क्वीज़ कर रहा था, मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी उसे। He gulped down the banana and a vada. उसने क्या किया, उसने गल्प कर लिया, मतलब खोला और खा लिया। His stomach felt better immediately. तो उसका जो पेट है वो तभी एकदम अच्छा फील करने लगा, मतलब बेटर, ठीक है, ऐसा वाला फील हुआ। He could have eaten at least 10 times more, but the girl could find only one more banana, which she ate herself. तो ये जो वैल्यू है वो इसका 10 टाइम खा सकता है, ऐसा उसका भूख लगा था। लेकिन द गर्ल who had given him the banana, the food, तो उसको क्या मिला, उसको सिर्फ एक और ही बनाना मिला जिसको उसने खुद खाया। क्लियर? ओके। Then it's too early. They have only eaten the tiffin. If you are still hungry, you will have to wait for them to finish your lunch. तो उसने बोला, गर्ल ने बोला कि तुम्हें ये बहुत ही जल्दी है, उन्होंने जस्ट अभी टिफ़िन ही किया है, लंच ही किया है। अगर तुम्हें ज़्यादा भूख लगी है तो तुम इधर वेट करो, उनका लंच फिनिश हो जाए, फिर जो बचा कुचा खाना बचेगा उसको तुम खा लेना। क्लियर? यू कैन वेट इफ़ यू वांट, तुम वेट कर सकते हो इफ़ यू वांट। आई हैव टू वर्क, आई एम गोइंग। तो गर्ल ने बोला कि शी हैव वर्क, सो शी इज़ गोइंग। She picked up a couple of bottles from the heap and threw them into her sack. तो उन्होंने क्या, मतलब उस लड़की ने क्या किया कि she picked up some of the plastic bottles and papers from the garbage and put it on his sack and just then she walked off. ठीक है, वो चलती रही। वैल्यू पैनिक्ड, वो एकदम पैनिक हो गया, अरे ये गर्ल मुझे छोड़ के जा रही है, मैं अभी कहाँ जाऊँ, मेरे को तो पता ही नहीं है। तो ही रियलाइज दैट इफ़ द गर्ल लेफ्ट हिम ही हैड नो आइडिया वेयर ही वॉज एंड व्हाट टू डू। तो उसे ये रियलाइज़ हुआ कि वो गर्ल अगर उसको छोड़ के चली जाएगी तो उसे तो इस जगह के बारे में आइडिया भी नहीं है, तो वेयर ही वुड गो, राइट? सो इट वॉज़ बेटर टू स्टिक टू हर। तो ये इससे अच्छा ये है कि वो उस गर्ल के साथ चिपक जाए, मतलब उसके साथ साथ ही चले। शी seemed to know her way around. तो वो जानती थी कहाँ कैसे जाना है, ठीक है। ही ran after her again. तो वो क्या किया, उसने उस गर्ल के पीछे पीछे वह भी चला। he called, उसने बोला कि he did not even know the girl's name. तो उसे नहीं पता था कि उस गर्ल का नाम क्या है। तो व्हाट्स योर नेम, तो उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। ही आग झाड़ी बिहाइंड हिम, मतलब वो दौड़ के बोल रहा था हे सुनो तुम्हारा नाम क्या है, लाइक दैट। क्लियर? शी स्टॉप्ड एंड टर्नड अराउंड, वो स्टॉप हुई, वो गर्ल स्टॉप हुई और टर्न मतलब मुड़ी। ओहो, सो यू हैव बिन फॉलोइंग मी अराउंड विदाउट इवन नोइंग माई नेम, जया। तो उसने बोला कि वाह भाई वाह, तुम मेरा पीछा कर रहे हो मेरे नाम को जाने बगैर, जया। मतलब उसने अपना नाम बताया, जया। आई एम नॉट फॉलोइंग यू। तो वो वैल्यू ने क्या कहा, वैल्यू ने बोला कि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ तुम्हें। व्हाट दैन, तो गर्ल ने बोला तो और क्या कर रहे हो। हु गॉट यू योर फूड, तो उसने बोला कि किसने तुम्हें फूड दिया। कैन आई कम विथ यू, वेयर आर यू गोइंग, तो वैल्यू ने पूछा जया को क्या मैं तुम्हारे साथ आ सकता हो, तुम कहाँ जा रही हो। कम इफ़ यू वॉन्ट, आओ अगर तुम चाहते हो। दिस बैग इज़ फुल, मेरा ये जो सैक है, द बैग दैट आई हैव इज़ फुल ऑफ द थिंग्स एंड आई हैव टू गो टू द होम टू गेट अनदर वन। तो वो गर्ल बोलती है कि मेरा जो ये सैक है वो पूरा भर चुका है, इसलिए आई हैव टू गो टू द होम, ठीक है। तो वो घर जा, मतलब उसने बोला कि
her bag was full, so she is going to home to get another one. Yeah, with this we have completed the second part. In the next video we're going to cover the third part and complete the whole chapter. So till then, bye bye.